Welcome back again. I'm Brajesh Mohan, and in this particular video, we would be discussing about NABARD Grade A 2025. Last day, I shared my guidebook on NABARD Grade A, and this particular guidebook covers each and every details about NABARD Grade A exam, like exam process, syllabus, books required, what has been the exam trends in last 4 years, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, at the same time, what has been the cutoff trend in last 3 to 4 years. So we have discussed each and every details in this particular guidebook. Salary कितना है, what is the salary as a grade A officers, क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, किस तरह से प्रमोशंस होता है, ऑल सच थिंग्स हैव बीन डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर गाइड बुक. इसी का वीडियो वर्जन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर रहा हूं. सो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, वी हैव launched our mentorship program for NABARD Grade 2025, as well as we have also launched our descriptive writing program. So those who are not interested in buying the full course which covers the phase 2 notes, फेज 1 के लिए आपको कवर करता है, वो सब नहीं चाहिए. दे ओनली नीड माई हेल्प इन करंट अफेयर्स एज वेल एज लर्निंग हाउ टू राइट डिस्क्रिप्टिव आंसर्स. For them, I run a different course which is called as descriptive answer writing. NABARD Grade A mock test course, descriptive mock test course, which cost you around 1799, 1800 रुपीज आपको कॉस्ट करता है. तो दोनों के डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा. यू कैन परचेज एनी ऑफ द कोर्स, आइदर यू कैन बाय द मेंटरशिप कोर्स और यू कैन परचेज द डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग. डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग आपको अप्रैल फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा. पहले आपको क्लासेस होंगे, देयर वुड बी 5 to 6 लाइव क्लासेस. ओके, उसका रिकॉर्डिंग से आपको मिलेगा. एंड इन दैट बेसिकली आई वुड डिस्कस हाउ टू राइट बेटर आंसर्स, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है, ऑल सच थिंग्स वुड बी डिस्कस. लेटर वी वुड डू द चैप्टर वाइज प्रैक्टिसेस एज वेल एज आई वुड गिव यू सम क्वेश्चंस टू राइट, और मैं उसको आपको चेक करूंगा. एंड दैट वे यू विल बिकम वेल वर्स्ड एंड लेटर यू कैन अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट. अराउंड देयर वुड बी 5 to 10 मॉक टेस्ट ऑन आंसर राइटिंग्स. तो वो आपको फुल लेंथ मॉक वगैरह अवेलेबल होगा जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. सो ऑल द कोर्स फीचर एंड एवरीथिंग इज डिटेल, एवरी डिटेल्स आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन आवर कोर्स पोर्टल, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं. ओके, तो चलो शुरू करते हैं. सो यू ऑल नो कि व्हाट इज नबार्ड. बेसिकली नबार्ड क्या है कि इसमें आप देख सकते हो द लास्ट वर्ड इट इज द ARD. सो इट इज द नेशनल बैंक. बेसिकली इट्स ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ओके, इन इंडिया देयर आर 5 AFI, All India Financial Institutions. Okay, their operations are all over India and they are established by the Act of a Parliament. So NABARD was established in 1982 by the recommendation of Graphicard Committee. A committee was formed, Graphicard. It is called as Graphicard Committee, and it was created under B. Sivaraman. He was the member of Planning Commission, and based on the recommendation of this particular committee, the NABARD was formed, and the responsibility that was given to NABARD was the development, to act as a development bank to foster rural prosperity. Okay, so this particular bank is responsible for agriculture and rural development in India. Okay, and it was basically established through a Parliament Act, and late Prime Minister Sri Indira Gandhi on 5th November 1982 dedicated the NABARD to the nation. Okay, ये भी ध्यान रख सकते हो. And here is the vision. And the mission is promote sustainable and equitable agriculture and rural development through participative financial and non-financial interventions, innovation, technology, institutional development for securing prosperity. तो ये इसका मिशन है. So in short, they are basically responsible for technological interventions, institutional development, at the same time financial and non-financial interventions in the field of agriculture and rural development. Okay, and NABARD has basically headquartered in Mumbai. It is wholly owned by the government of India. It's a complete 100% entity of government of India. पूरा का पूरा fully government of India entity है. Okay, it has head office in Mumbai and 31 regional offices located in states and union territory capitals generally. Okay, and a cell in Srinagar also, and there are 4 training establishments also, and also it has 414 district development manager. It is one of the golden post. This DDM post is considered as one of the golden post of NABARD. You become DDM once you become grade B, means आप manager बनते हो और after some experience you may get the opportunity to become the DDM. Okay, so it is considered as a golden post. काफी अच्छा होता है कि आपको डिस्ट्रिक्ट में प्रोफाइल मिलती है. यू इंटरेक्ट विद द सिविल सर्वेंट या सिविल सर्वेंट, या आपको अलग अलग बैंक वगैरह से इंटरेक्ट करते हो, एंड यू क्रिएट ए क्रेडिट प्लान फॉर द डिस्ट्रिक्ट. तो काफी अच्छा जॉब प्रोफाइल होता है. ओके, सो दिस इज थिंग.
And NABARD has three major functions. Those functions are financial functions, supervisory functions, and development functions. Under the supervisory function, it supervises the work of rural cooperative. It supervises the work of rural cooperative and रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबी, जितने भी आरआरबी है, रूरल कोऑपरेटिव्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स का आपको ये ऑपरेशंस उसका देखता है, उसको सुपरवाइज करता है. ओके. एंड इट हैज डेवलपमेंट फंक्शंस वेयर इट बेसिकली प्रमोट द एसएचजी डेवलपमेंट, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह होते हैं उसके डेवलपमेंट को देखता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना, क्लाइमेट चेंज, ऑल दी आर डेवलपमेंट फंक्शंस. फाइनेंशियल फंक्शंस में प्रोवाइडिंग फाइनेंस लाइक आरआईडीएफ. Under its RIDF fund, Rural Infrastructure Development Funds, it basically promotes the इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रूरल एरिया, लाइक आप पॉन्ड्स वगैरह हो गए या जैसे ग्रामीण सड़क वगैरह बनाना हो, कई तरह के डेवलपमेंट्स को ये प्रमोट करता है. ये डायरेक्टली वर्क्स विद स्टेट गवर्नमेंट. इसमें आपको स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंस किया जाता है. So you now understand what is basically NABARD, and you would be responsible. Being an officer, you would be participating in all these kind of works throughout your career span. So it is NABARD is providing you a wonderful opportunity. और यहाँ पर 5 days वीक है, मतलब आपके जो है 5 days ही वर्किंग होती है, मंडे टू फ्राइडे आपका ऑफिस होता है. सेकेंड थिंग यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि जितने भी ऑफिस है, जो भी मैंने आपको रीजनल ऑफिस बताए, ये मोस्टली कैपिटल एरिया में होते हैं. जैसे कि इन बिहार द ऑफिस इज इन मोरियालोक, लाइक इन पटना वन ऑफ द प्राइम लोकेशन, दे हैव ऑफिस इन वन ऑफ द प्राइम लोकेशन. इवन द रेसिडेंसी ऑफ NABARD जो आपको क्वार्टर्स मिलते हैं, वो भी इट इज इन एग्जीबिशन रोड, वन ऑफ द प्राइम लोकेशन इन पटना. तो सिमिलर केस आपको अलग अलग जगह पे, जैसे चंडीगढ़ में आपको है. मेरे काफी सारे लोग जो पहले जो लोग मेरे साथ प्रिपेयर करते थे, आई हैव गिवन इंटरव्यू कंजिक्यूटली इन 2021 एंड 2022. ओके. 2020 में मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था. आई हैड गिवन मेंस बट वो क्लियर नहीं हुआ था. और 2023 में मैं एलिजिबल नहीं होता ड्यू टू एज कंस्टेंट में आपको, तो उसके बाद में एलिजिबल नहीं था. एंड अनफॉर्चुनेटली इन बोथ द इंटरव्यू अटेम्प्ट्स आई डिड नॉट गेट द सफिशिएंट मार्क इन इंटरव्यू. और कई रीजन थे. माय प्रोफाइल हैड सम मिसिंग पॉइंट्स, कुछ चीजें मिसिंग लिंकेज वगैरह थी. ओके. लाइक आई डिड नॉट वांट टू शो देम एज अ टीचर. मैं उनको नहीं बता था कि मैं एडटेक वगैरह में वर्क करता हूँ. तो कुछ चीजें थी जिसके कारण से वो चीजें वर्कआउट नहीं हुई, एंड आई डिड नॉट क्वालिफाई द इंटरव्यू. बट आई हैव गिवन द 2 कंजिक्यूटिव इंटरव्यूज. ओके. और 3 मेंस मैंने दिए हुए हैं. सो दिस इज हाउ जी. तो काफी अच्छा आपको ये जॉब प्रोफाइल ऑफर करता है. तो जो जैसे मैं बोल रहा था कि देयर आर सम friends of mine who used to prepare with me, they are working in, some of them are working in Simla, some of them are posted in Chandigarh, some of them are posted in Ahmedabad, some of them are posted in Patna also. So you get the opportunity. Some of them are posted in Dehradun also. So you get a varied opportunity. You get posted in one of the capitals only. कोई रूरल पोस्टिंग का भी चक्कर नहीं होता है, और आपको काफी अच्छा जो यहाँ पर चीजें एक तरह से मिलती है. Okay, now if I have to talk about the salary, if I have to talk about the salary wise, so salary wise, this is the basic pay 44,000. So आप इसको ऑलवेज जब भी बेसिक जितना उसको डबल कर सकते हो, उतना ही लमसम आपको मिलते हैं. सो यू गेट अराउंड विथ ऑल द बेनिफिट्स एंड अदर थिंग्स इंक्लूडेड. आपकी सैलरी जो होती है मंथली, इट इज अराउंड 1 लाख रुपीज. ओके. इट इज मंथली, इट इज 1 लाख. मैंने एक सैलरी यहाँ पर स्लिप ऐड भी किया है, नेट सैलरी वगैरह, क्योंकि इसमें और भी काफी कुछ इंक्लूडेड है, तो इसीलिए आपको इतना गया है. लेकिन ऑन एन एवरेज और मंथली बेसिस यू गेट 1 लाख 1 to 1.15 लाख रुपीज. ओके. IT 90,000 रुपीज से लेकर 1.15, डिपेंडिंग अपॉन द अलाउंस एंड अदर फीचर्स, लाइक कहाँ पर पोस्टेड वगैरह हो, उस हिसाब से आपको उतना मिलता है. सो सैलरी इज गुड, राइट. तो वो भी चीज आपको यहाँ पर है. एंड दिस इज द हायरार्की, लाइक असिस्टेंट मैनेजर, देन यू बिकम द मैनेजर ग्रेड बी. 4 साल बाद आपकी ट्रांसफर, 3.5 साल से लेकर 4 साल में आपकी जो है वो प्रमोशन हो जाती है, एंड यू बिकम द मैनेजर. And you may get the opportunity to become DDM, one of the golden opportunity. Okay, at this level, then you become AGM, DGM, general manager, chief general manager, executive director, and director. Okay. So many of the people, let's suppose you join NABARD at the age of 25. So you may become the CGM as well as you may become the ED. Okay, जितना जल्दी आप सेलेक्ट होगे उतना आपके पास, क्योंकि बिकॉज द कैरियर स्पेन वुड बी लॉन्गर. आपके केस में क्या होगा, योर कैरियर स्पेन वुड बी लॉन्गर, सो यू मे हैव द अपॉर्चुनिटी टू रीच अ लेवल हायर. अगर आप मान लो लेट्स सपोज यू गेट सेलेक्टेड एट द एज ऑफ 30, तो आपका 5 साल तो कम हो गया ना. यू विल हैव 5 ईयर लेसर कैरियर स्पेन, राइट. राइट. तो वो चीजें होती है, तो इसीलिए आपकी जो है वो सबसे टॉप पोस्ट जो होगी वो मे बी डायरेक्टर या ईडी वाले नहीं हो सकती. तो इसीलिए ये चीज आपको देखना होता है कि यू गेट selected as early as possible so that you would have longer period of, क्योंकि सबको 62 में आपको रिटायर करना है, तो वो चीज ध्यान रखते हुए कि कितना लंबा आपका जो है करियर स्पेन है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रमोशन एंड ऑल चीज जो है वो मिलती है, बेनिफिट्स मिलती है. ओके. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम. सो लेट्स get to know about the exam. So
In the last 4 years, the notification came in July, September, and once again in July. I have mentioned the date also, and this was the phase one, how the phase one, when the phase one was conducted, and when was the phase two was conducted. So as per my expectations, this year the vacancy could be anywhere between 80 to 90. Last year the vacancy decreased, and I believe that there may be slight decrease this year too. So last year in 2024, the vacancy was around 102, and for generalist the vacancy was around 50. Okay, and the last time less than 100 vacancy reported was in 2019. At that time, 79 vacancies were only reported. Total 79 vacancies were reported. Okay, and there are various posts. There are 10 to 11 posts. So half of the vacancies are for generalist, and remaining जो आप होते हैं उसमें से second highest is vacancy for computer. Okay, IT related post के लिए होता है. Then the third highest is for finance. And later on, there are 2 vacancies, 3 vacancies, sometimes 5, 7, 8 are for agriculture specialist post. Okay, तो वो चीज आपको available हो. So those are available. So what is the eligibility basically? Eligibility is 21 years minimum. It should be 21 years and maximum 30 years. When do they calculate? They calculate the first day of the notification month. Let's suppose notification came. Let's suppose notification came in July in 2024, right? It came in July. So the first July would have been the कट ऑफ डेट टू कैलकुलेट योर मिनिमम एंड मैक्सिमम एज आपको इसी डेट पर कैलकुलेट होगा. लेट्स सपोज दिस टाइम नोटिफिकेशन कम्स इन अगस्त, सो 1 अगस्त वुड बी द कट ऑफ डेट. ये चीज ध्यान रखना कि जो मिनिमम एंड मैक्सिमम कैलकुलेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नोटिफिकेशन मंथ. ओके, और यहाँ पर आपको मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए इन ग्रेजुएशन. एंड फॉर SC ST PWBD इट इज 55% आपको है. और फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री MBA PGDM आपको मिनिमम 55 मार्क्स ही चाहिए होते हैं. एंड फॉर SC ST इट इज 50%. तो ये चीज आपको ध्यान रखना. Okay, if I have to talk about the exam pattern NABARD का quite easier compared to other regulatory body exams, because here if you are not good in quant reasoning English तो भी आपका काम हो जाएगा, because you are supposed to only clear the sectional cutoff of these segments. Okay, so you are supposed to clear the sectional cutoff of reasoning, decision making, English, computer, and quant. Remaining, and these would contain 100 marks. The total paper is worth 200. Out of those 200, 100 marks comes from non-merit section. They are called non-merit because यहाँ पर क्या होता है कि दे आर ओनली सेक्शनल. यू आर सपोज टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ ओनली. ओके, आपको उसका मार्क्स ओवरऑल में ऐड नहीं होगा. आपकी जो मेरिट बनेगी टू सेलेक्ट यू फॉर मेंस एग्जाम, दैट वुड बी बेसिकली बेस्ड ऑन योर स्कोर्स इन GA प्लस ESI प्लस ARD. GA प्लस ESI प्लस ARD को जो 100 मार्क्स होंगे, दोज वुड बी कंसिडर्ड एज मेरिट सेक्शन. एंड इसमें आप जो स्कोर करोगे बेस्ड ऑन दैट कट ऑफ वुड बी मेड, और उसी कट ऑफ पर आपका सिलेक्शन होगा phase 2 एग्जाम के लिए. ओके, लाइक इफ आई हैव टू शो द कट ऑफ, so this was the prelims cutoff in 2023. At the moment 2024 cutoffs are not yet released, तो जब भी आएगा वो बता दिया जाएगा आपको. ओके, सो these were the cutoffs in 2023. like for generalist post in general category it was 46 marks, EWS 33.50, OBC 42.50, SC and ST, so on. Similarly for computer we have this finance and we have civil engineering. So all these posts are released basically every year. Okay, और कुछ पोस्ट नहीं भी आते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर, फाइनेंस, ओके, एंड जनरलिस्ट, ये तीनों आपको हर साल पिछले 5-6 साल से लगातार आ रहे हैं. Similarly, if I have to talk about, you can also compare the previous year cutoff, like what was the cutoff in 2021. It is the mains cutoff. Okay, let's I think I forgot to, no, yeah, here for the general category in 2021 the general category cutoff was 53.50. For in 2022 general category cutoff was 41.75. In 2023 it's 46 marks. So this has been the cutoff. ये sectional cutoff है पिछले 3 साल का, 2021 में, 2022 में और 2023 में. Okay, you can see over here like these are the 5 segment, these are the 5 sections जहां पर आपको बस sectional clear करने हैं. and sectional आप देख सकते हो किस तरह से है. In 2021 when the paper was quite easier, as it was the first year of change pattern. Okay, जो descriptive वाला pattern आया था और merit non merit का pattern आया था, so it was the first year, so they had higher cut sectional cutoff, but later on especially in quant it decreased to 3 marks. You can see over here. Similarly in reasoning and English overall the cutoff has been higher over the year. Okay, ये चीज ध्यान रखना, इंग्लिश में आपको ज्यादा स्कोर करना पड़ता है. ऑल्सो द इंग्लिश
has a higher weightage, it is of 30 marks, and quant and reasoning is of only 20 marks. Okay, then there is decision making 10 marks. यहाँ पर आपको 1.50 marks score करने हैं, more than not more than 2 marks. You not have to score more than 2 marks. Okay, ये चीज ध्यान रखना. So computer awareness is again, so you can see over here the sectional cutoff how it has been trending. Okay, general awareness, and it is of 20 marks this year in 2024. The paper was quite unexpected, especially in case of general awareness, and many of the students, those who are quite brilliant, they did mess up in the general awareness because of static nature of general awareness paper. They had asked lots of banking awareness questions, और उस कारण से लोगों को मुझे लगता है कि the sectional cutoff would have been 1 or 2 marks, hardly 1 or 2 marks in the general awareness this year in 2024. Either it's 1 or maybe 1.5 marks, not more than that. Okay, then there is economics and social issues. So this has been the sectional cutoff. Similarly, I have also mentioned the mains cutoff. Okay, for 2023, this is the final cutoff. This much score you are supposed to score. This is the final cutoff. Final cutoff is basically whatever you have total score in phase 2 plus interview. Okay, and in NABARD, interview is worth 50 marks and phase 2 is worth 200. So 200 plus 50 is 250. So out of 250, the final cutoffs are created. And for generalist post and for general category, you can see you had to score 171.25 marks in 2023 to get final selection. Similarly, in case of EWS, you had to score 168.50. In case of OBC, this was the score. So this is the final cutoff. Similarly, for computer science, you can see over here, for finance, you can see over here, this was the final cutoff. But if I have to talk about the phase 2, मतलब मेंस का cutoff जो था, जो out of 200 marks होता है, paper 1 के 100 marks and paper 2 के 100 marks. So it was for generalist category and for generalist post and general category, it was 128.50. For EWS, it was 121 marks, OBC 125.50, and so on. Similarly, you can see for other posts also. Okay, one more thing here over here. In phase 2 exam, to qualify for interview stage, there is sectional cutoff. ये RBI में नहीं है, but in NABARD you have this sectional cutoff. So focus on this. It is very important. Not everyone know about this. So here in the mains exam you have sectional cutoff also in paper 1 and paper 2, as well as objective and descriptive. Like for paper 1, which is descriptive English, so you are supposed to score for generalist post, for general category and EWS category, you are supposed to score 53.25 marks. Okay, मिनिमम आपको इतना करना पड़ेगा. अगर आपके स्कोर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर विच इज पेपर 1 टोटल 100 मार्क्स के, अगर आपके स्कोर इससे कम है, नो मैटर हाउ मच यू स्कोर इन द पेपर 2, लेट्स सपोज यू स्कोर 70 मार्क्स, स्टिल यू वोंट बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू. ये चीज ध्यान रखना. यहाँ पर दूसरा क्या है, अब देखो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव जो था उसमें 31 मार्क्स था आउट ऑफ 50 मार्क्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग पेपर टू क्या होता है कि दो भाग में होता है, 50-50 करके. 50 मार्क्स इज फॉर ऑब्जेक्टिव एंड 50 मार्क्स इज फॉर डिस्क्रिप्टिव. सो आउट ऑफ दिस डिस्क्रिप्टिव पेपर 50 मार्क्स, डीपी मीन्स डिस्क्रिप्टिव पेपर, तो यू हैड टू स्कोर 31 मार्क्स इफ यू बिलोंग्स फ्रॉम अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी. सेक्शनल कट ऑफ सेम होता है आपको जनरल और ईडब्ल्यूएस का. And for objective, you have to score 22.50. Similarly, for SC, ST, OBC, PWBD, this was the sectional cutoff. तो ये चीज ध्यान रखना कि there is sectional cutoff provision also in case of NABARD grade A mains exam. काफी लोगों को ये पता नहीं होता और they later on से कि सर मेरा तो इसमें अच्छा स्कोर था, फिर भी मेरा मेंस के लिए कॉल, इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आया. तो this is the reason you have to score above higher, ताकि सेक्शनल भी आपको क्लियर करना पड़ेगा. ओके, और ये पूरा मैंने फेज 1 का कट ऑफ दे रखा है. दिस इज द मेंस एग्जाम कट ऑफ फॉर 2022. ओके, 2022 में 130 मार्क्स था जनरलिस्ट के लिए जनरल पोस्ट में, एंड 2021 में 118 था. चूंकि ये फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रहा था आंसर राइटिंग पर, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग पर, दैट्स व्हाई द कट ऑफ वाज क्वाइट लोअर. बट लेटर ऑन इन 2022 एंड इन 2023, इवन इन केस ऑफ 2024, द कट ऑफ वुड बी अराउंड 130. एज यू हैव सीन 130 था, 128 उसमें था. इस तरह से आपको कट ऑफ जो है वो हाई गया, राइट. तो आप इस तरह से कट ऑफ देख सकते हो कि कैसे वेरी कर रहा है आपको प्रीलिम्स में और मेंस में और फाइनल के लिए भी. अब यहां पर से आपको एक चीज ध्यान समझ में आ रहा होगा कि हाउ मच, लेट सपोज इफ द कट ऑफ इज 128.50 मार्क्स and they are selecting and the final selection is being done at 171.25. Okay,
The mains cutoff was 128.50, but the final selection was done at 171.25. So what is the difference? The difference is around 43 marks. ओके, एंड बिलीव मी, नवाड में आपको 40 प्लस इंटरव्यू में लाना एट द अब के टाइम में, पहले पॉसिबल था, लोग को 25 में 25 मिलते थे, बट इन द लास्ट 2 to 3 year आई हैव सीन दे आर नॉट गिविंग यू दैट मच मार्क्स। इतना आसान नहीं है आपको मार्क्स लाना इंटरव्यू में, इतना आसानी से मार्क्स लाना। सो हियर यू हैड टू स्कोर एटलीस्ट 10 marks, और नॉट मे बी 5 to 10 marks आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा यहाँ पर। सो दोज हु आर स्कोरिंग 140, around 140, so they have better chance to get selected in NABARD, because even with 35 marks in interview, they could have got selected. Okay, they could have got selected. My case was different. I had scored 138 marks and I needed 35 marks in interview, but I got only 30 marks in 2022 पेपर। 2022 वाले में मेरे साथ ये हुआ था कि I needed 35 marks, but I got only 32, 30 या 32 थे मेरे, तो 3 नंबर या 4 नंबर से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। सो समटाइम्स इट हैपेंस कि आपको उतना करने के बावजूद भी यू कैन बी अनलकी उस तरह से, लेकिन फिर भी आइडियल केस यही कहता है, दिस इज द आइडियल केस, दैट इफ यू स्कोर एटलीस्ट 10 marks हायर देन द मेंस कट ऑफ, देन यू हैव बेटर चांस टू गेट सेलेक्टेड इन गेट फाइनल सिलेक्शन इन अवार्ड, बिकॉज even if the interviewer give you lesser marks, less than 40, still you would have better chance to get selected. ओके, तो ये सब चीजों को समझना जरूरी है ना। हियर व्हाट आई हैव डन, आई हैव बेसिकली गिवन प्रीलिम्स एग्जाम में काफी लोगों को दिक्कत होता है कि सर क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। सो यू नो इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू, इट इज अ मेरिट सेक्शन एंड 40 marks वर्थ ऑफ क्वेश्चन कम्स ओवर हियर। तो उस 40 marks में कहां से क्या पूछा जाता है, तो यू कैन सी द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड कैंपेन्स कम फ्रॉम फॉर एटलीस्ट 16, 15, 18, 22। तो ये 20 marks का जो है एटलीस्ट क्वेश्चन कहां से आ रहा है, ये पीआईबी प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज से आ रहे हैं। Where it is coming? It is coming PIB programs and policies and related to some of the important ministry which relates to our syllabus. Okay, it could be agriculture ministry also, and it could be the syllabus related to economics ministry या social issue के जो ministry है उससे related। तो वहां से आपको ये क्वेश्चंस बन रहे हैं। देन देर इज रिपोर्ट्स इंडेक्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड वही आपको उससे हाईएस्ट आ रहा है। बजट एंड इकोनॉमिक सर्विस आपको क्वेश्चन आ रहा है। देन देर इज इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स। अब ये स्टेटिस्टिक्स बेसिकली क्या है कि जो भी आपको एक तरह से डाटा फैक्ट्स वगैरह होते हैं उससे आपको यहाँ पर क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं, जैसे एमएसपी डाटा एंड ऑल, उस सबसे आपको क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पर पूछते हैं वो लोग कि जो एमएसपी का खरीफ का इस क्रॉप कौन से क्रॉप के लिए सबसे ज्यादा एमएसपी था, या जो इकोनॉमिक सर्वे आपको कुछ डाटा वगैरह आता है तो उससे आपको कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस वगैरह रहता है। बट मेजर क्वेश्चंस इफ यू हैव कवर्ड द पीआईबी रियली वेल लास्ट 6 मंथ का, आप अगर लास्ट 6 मंथ का अच्छे से करके गए हो पीआईबी, साथ ही साथ अगर आप बैंक रिपोर्ट्स अच्छे से करके गए हो, यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे आप अच्छे से करके गए हो, उसके अलावा थोड़ा बहुत अगर आप जो है करंट अफेयर्स को आप पढ़ के गए हो, जो भी आप करंट अफेयर्स जो जनरल अवेयरनेस के लिए पढ़ते हो, वो चीज आपको 3-4 महीने का बैंकिंग करंट अफेयर्स खास करके आरबीआई रिलेटेड जो आरबीआई के आपको अपडेट्स होते हैं या आपको और भी जो अपडेट्स होते हैं वो अगर आपने वो करके गए हो, तो मुझे लगता है कि आपके यहाँ पर काफी अच्छे मार्क्स रहेंगे। 25+ आप स्कोर यहाँ पर आसानी से कर सकते हो बाय डूइंग ऑल दीज थिंग्स। Similarly, if I have to talk about the agriculture and rural development, again 40 marks के यहाँ पर से आपको क्वेश्चंस आते हैं। ओके, क्वेश्चंस वर्थ ऑफ 40 marks कम्स ओवर हियर। और यहाँ पर आप देखोगे तो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस, अराउंड हाफ ऑफ द क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर स्टैटिक। जो भी आपको चैप्टर्स दिया हुआ है फ्रॉम देयर दे आस्क यू अराउंड 50% ऑफ वर्थ ऑफ क्वेश्चंस, यू कैन सी ओवर हियर, लास्ट 4 year का है। द सेकंड इंपॉर्टेंट इज एग्रीकल्चर स्कीम्स। देयर आर 5 एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रीज, there are 5 agriculture ministries like Ministry of Agriculture, Ministry of Rural Development, Ministry of Food Processing, Ministry of Animal Husbandry, और कौन सा एक और है, यस, पंचायती राज। एंड आज की डेट में कोऑपरेटिव भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, कोऑपरेटिव भी। सो दी आर 5 to 6 मिनिस्ट्री विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर कॉल्ड एग्रीकल्चर रिलेटेड मिनिस्ट्री। सो ऑल दीज मिनिस्ट्री रिलेट विथ योर एग्रीकल्चर स्टैटिक सिलेबस। तो वो चीज आपको करना पड़ेगा। तो वो सब सारे के सारे आपको जो है उसी से रिलेट, इन मिनिस्ट्रीज के आपको सारे प्रोग्राम्स, यू विल हैव टू कवर ईच एंड एवरी प्रोग्राम ऑफ दिस मिनिस्ट्री। तो वो सब आपको उसी से क्वेश्चंस यहाँ पर बनता है। ओके, देन देर इज नबार्ड की कुछ इनिशिएटिव, लेट्स सपोज जैसे कि मैंने बोला आरआईडीएफ के, देन नबार्ड हैव सम सब्सिडीज आल्सो लाइक नवकॉन, नवफिन एंड ऑल, देर आर 7 to 8 सब्सिडीज ऑफ नबार्ड। तो कई बार उस सब्सिडीज का क्या फंक्शन है उससे क्वेश्चंस पूछा जाता है, या नबार्ड के जो आपको डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट फंड्स, लेट्स सपोज एज आई सेड आरआईडीएफ फंड के बारे में, या और भी जो होते हैं, या नबार्ड कई तरह के, लास्ट ईयर नबार्ड लॉन्च एग्री श्योर प्रोग्राम।
उससे पिछले साल उन्होंने जीवा प्रोग्राम लॉन्च किया था। सो दीज आर द इनिशिएटिव्स बाय द, या क्लाइमेट इनिशिएटिव उनका कोई गोल सेट करते हैं। सो ऑल दीज आर नबार्ड रिलेटेड जो बेसिक इनिशिएटिव्स होते हैं, उससे आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। देन देर आर सम एआरडी रिपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, जैसे कि एमएसपी प्रोडक्शन, लाइफ स्टॉक, वो सब भी आपको यहाँ पर आता है। सारा का सारा पीआईबी में कवर होता है, पीआईबी से बाहर ये सब नहीं पूछते, सब पीआईबी से आता है। Then there is some important reports like census, socio-economic caste census, handloom census, livestock census, agriculture census, इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट। इससे भी आपको 3-4 क्वेश्चंस दिखने को मिलता है। और फिर बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे के यहाँ पर भी आपको इकोनॉमिक सर्वे है, सेपरेट सेगमेंट, सेपरेट आपको चैप्टर है, दो, एक या दो चैप्टर है जो आपको वो एग्रीकल्चर रिलेटेड डाटा फैक्ट्स दिया हुआ है, एग्रीकल्चर कैसे प्रोग्रेस कर रहा है इकोनॉमी में, वो सारा कुछ उसमें दिया हुआ है। सो दे आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम देयर ऑल्सो। और बजट में भी आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड काफी इनिशिएटिव्स होते हैं, उससे आपको क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है। तो यही पूरा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है। इतना आप कर लेते हो तो वंस अगेन आपको 25-30 मार्क्स, 25 मार्क्स प्लस ही आप यहाँ पर टारगेट कर सकते हो। ओके, सो दैट्स हाउ इट इज बेसिकली। Okay, so now let's talk about the computer science. Computer science, once again, it is very difficult for some of the people, especially agriculture graduates. तो यही बस टॉपिक डिसीजन मेकिंग के हैं। कंप्यूटर एंड डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हियर in the let's talk about the decision making. These are the topics from where they ask you question in decision making. Similarly, in computer awareness, these are the topics from where they ask you questions, right? आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो कहाँ से आ रहा है। सिमिलरली क्वांट में ये सब चैप्टर्स हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर डीआई, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक। लास्ट ईयर दे डिड नॉट आस्क एनी क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस। अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन यहाँ से आते हैं। और लाने कितने आपको 3 to 5 मार्क्स, लाने कितने 3 to 5 मार्क्स। ओनली सेक्शनल क्लियर करना, यू आर सपोज टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ ओनली। You are not supposed to score 10 marks over here. You are supposed to clear the sectional cutoff, and I have already shown you the sectional cutoff. दिस इज द सेक्शनल कट ऑफ ऑफ लास्ट 3 ईयर। आप देख सकते हो कि 2021, 22, 23, 24 वगैरह में किस तरह से सेक्शनल कट ऑफ था। 24 का भी डाटा आएगा तो वो भी आप देख लेना, मिला लेना। इतना ही करना होता है बस आपको। सेक्शनल जो नॉन मेरिट सेक्शन है, यू आर सपोज टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ ओनली। तो वो तो मैं कहीं से भी कर सकता हूँ। और मुझे ये भी ध्यान रखना है कि आई एम सपोज टू एलोकेट दैट मच टाइम वेयर आई शुड बी एबल टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ। ना ज्यादा करेंगे ना कम करेंगे। ओके, इतना ही करना है ताकि सेक्शनल हो जाए कम से कम 6-7 क्वेश्चन। क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ मान लो ऊपर नीचे हो गया, कोई क्वेश्चन गलत हो गया, इधर उधर हो गया, तो उसके लिए जरूरी क्या है कि आप इतना दिमाग में सेट करके जाओ कि मुझे 6-7 क्वेश्चन कर लेना, ताकि आई वुड बी सेफ ऑन अ सेफर साइड। Okay, it's not like I would be doing only 3 questions. I would be doing at least 5 to 6 questions so that I should be on a safer side. Even if I make 1 or 2 mistakes, I should be on a safer side. Similarly, in case of reasoning ability, they ask you puzzle, sitting arrangement. Puzzle नहीं भी करते तो भी कम से कम एक puzzle तो करना ही पड़ेगा। बट उसके अलावा भी कोडिंग, डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, इनइक्वलिटी है, सिलोगिज्म पूछ देते हैं वो लोग, तो ये सब से भी आपको 4 नंबर हो जाएंगे। अगर आपसे पजल नहीं बनता, स्टिल यू वुड बी एबल टू, बट you will have to have that mindset. Like in the exam scenario, you will have to allocate at least 10 minutes over here. Okay, at least 10 minutes in case of quant. तो तभी जाकर आप ये चीजें मैनेज कर पाओगे। एंड that's why over here I have given a fixed time management. This is the biggest hurdle for many students in the case of NABARD. They fail the NABARD prelims just because of this thing. Because they are not here, you have a cumulative time of 2 years, you do not have sectional timing, and just because of that people keep solving the agriculture rural development, people keep solving the ESI, people keep solving the some other segment. Okay, and they do not give allocate proper time to other sections like quant, reasoning, English, and like in most of the case time, most of the times in English they even don't know what has been the sectional cutoff in last 3 years. आपको जब पता है कि यहाँ पर इंग्लिश में ज्यादा कट ऑफ जा रहा है, सेक्शनल जा रहा है, 12 नंबर 13 नंबर जा रहा है, तो यू विल हैव टू अटेम्प्ट अकॉर्डिंगली दैट, राइट। आपको कम से कम या 15-16 अटेम्प्ट करने पे देन ओनली यू वुड बी गेटिंग दैट मच मार्क्स। तो ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कितना चाहिए और हाउ मच टाइम आई विल बी एलोकेटिंग टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और उस वो चीज आपको पूरा दिमाग में सेट रहना चाहिए। यू शुड प्रैक्टिस एटलीस्ट 5 to 10 मॉक टेस्ट यूजिंग दिस टाइमलाइन। इतना टाइम आपको देकर ही आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए, तभी जाकर आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन होगा। बिलीव मी, यू विल फेल प्रीलिम्स जस्ट बिकॉज यू वर नॉट एबल टू मैनेज टाइम। ओके, प्रीलिम्स ऐसा कुछ नहीं डिफिकल्ट है, मैंने आज तक कोई फेल नहीं किया। ओके, क्योंकि आई वॉज नॉट मेकिंग दीज स्टूपिड मिस्टेक्स। आपको ये समझना पड़ेगा कि इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट आप प्रीलिम्स फेल कर सकते हो। कितना भी आपको अच्छा पढ़ाई पढ़ के गए होगे, लेकिन वही है कि बस आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए। सोचो बस सेक्शनल क्लियर करना है यार, ये आरबीआई की तरह यहाँ पर कोई अच्छा स्कोर नहीं करना। और कोई ऐसा भी नहीं कि जो क्वांट रीजनिंग का पेपर फाड़ू हुआ था, नो, इट इज ऑफ ओनली आईबीपीएस पीओ प्रीलिम लेवल।
पीओ के प्रीलिम लेवल का क्वेश्चन रहता है, कुछ ज्यादा खास ऐसा भी पजल कोई खास नहीं रहता है, कोई भारी भरकम सा, इजी इजी चीजें, इजी टू मॉडरेट चीजें रहती है। ओके, सो यू जस्ट नीड दैट काइंड ऑफ लेवल and that mindset that whatever may come I would be able to manage, or I will have to manage the time better। तो आप देख सकते हैं here I have basically allocated time for 120 मिनट आपको दिया हुआ है, उसको मैंने पूरा बांट कर आपको दिया हुआ है कि हर सेगमेंट के लिए, और कौन सा सेगमेंट इजी हो सकता है, कौन सा मॉडरेट हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आई हैव ऑल्सो गिवन यू द गुड अटेम्प्ट्स, व्हाट शुड बी द गुड अटेम्प्ट सो दैट यू कैन क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ। ओके, कितना टाइम देकर उतना आपको सेक्शनल कट ऑफ कैसे क्लियर कर पाओगे। तो ये चीज आपको दिमाग में बैठा लेना है और इसको टारगेट करके चलना है, तो आप कभी भी प्रीलिम्स फेल नहीं करोगे। ओके, एंड देन वी हैव अ सिलेबस ओवर हियर फॉर रीजनिंग एबिलिटी, दिस इज द सिलेबस फॉर क्वांट, दिस इज द सिलेबस। यू कैन पॉज द वीडियो ऑल्सो, दिस पर्टिकुलर मतलब ये जो गाइड बुक है ये ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम पर, फ्रीली अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। Okay, so for current affairs, you are supposed to do 4 to 5 month of current affairs. Okay, but this is the whole ये करंट अफेयर्स की बात हो रही है, पीआईबी की बात नहीं हो रही। मैंने पीआईबी बोल रखा है आपको 6 to 8 मंथ का करना पड़ेगा, एंड आई एक्सप्लेन यू कि पीआईबी का कितना इंपॉर्टेंस है। ओके, स्पेशली द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी, पीआईबी मीन्स प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज बेसिकली। ओके, एंड देन फॉर ईएसआई यू आर ऑल्सो सपोज टू डू सम मिनिस्ट्री, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, उसके आपको फोकस करना है, लाइक इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, एमएसएमई, फाइनेंस, वुमेन, एजुकेशन, सोशल जस्टिस एंड ट्रैवल, दीज आर मस्ट डू मिनिस्ट्री। तो वो जो 5 मिनिस्ट्रीज मैंने ऊपर बताए थे एग्रीकल्चर रिलेटेड, अपार्ट फ्रॉम दैट दी आर द ईएसआई रिलेटेड मिनिस्ट्रीज, यू आर सपोज टू डू दीज मिनिस्ट्रीज ऑल्सो एंड टू डू दीज रियली वेल। इसके जितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं, जितने भी मेजर प्रोग्राम्स हैं लास्ट 1 साल में, जो भी प्रोग्राम्स एक्सटेंड हुए हैं, जो भी न्यूली लॉन्च प्रोग्राम है, वो सबके पास आपको 1 पेजर नोट्स होना चाहिए। यू शुड हैव अ 1 पेजर नोट्स on all these which will cover each and every aspect of that particular program। ओके, ये प्रोग्राम से रिलेटेड आपको होना चाहिए। इसके अलावा कई लोगों को कई बार होता है कि सर कौन कौन से प्रोग्राम्स इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना है कि देखो, कई बार इन मिनिस्ट्रीज के अलावा भी कुछ कुछ मिनिस्ट्री है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, recently there are 2 to 3 programs of ministry of electronics are very important, though that particular ministry is not directly related to our syllabus, but it could be asked in ESI। जैसे कि इंडिया एआई मिशन हो गया, लाइक देयर इज सेमीकंडक्टर मिशन, देयर इज क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन, तो दीज आर द मेजर प्रोग्राम्स जो कि आपको पूछ सकता है। सिमिलरली साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, विज्ञान धारा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोग्राम, वो पूछ सकता है। लाइक इफ यू लीव द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज देन यू वोंट नो अबाउट मिशन मौसम, राइट। सो मिशन मौसम इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोग्राम जो भी रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इट हैज मेजर रोल इन टू प्ले इन एग्रीकल्चर बिकॉज इट बेसिकली हैज बीन लॉन्च फॉर फोरकास्टिंग, और एग्रीकल्चर आपको पता है कि मौसम का फोरकास्टिंग कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपको पीआईबी को अच्छे से पढ़ना है, सो यू विल हैव टू कवर दीज मिनिस्ट्रीज, ऑल द प्रोग्राम, ऑल द मेजर प्रोग्राम मिनिस्ट्री वाइज। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल हैव टू ऑल्सो कवर द पीआईबी ऑफ 6 to 8 मंथ। उसमें जो जो आपको इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स दिखे, जो भी आपको इम्पैक्टफुल प्रोग्राम दिखे, जिसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा होगा, वो सब प्रोग्राम्स का भी आपको नोट्स बनाना, मेजर प्रोग्राम्स का आपको बना के रखना है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आपको बन सकता है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। ओके, उसके अलावा रिपोर्ट्स में आपको जो है ये सब तो कवर करना ही है, लेकिन उसके अलावा जो रिपोर्ट्स होते हैं, जैसे यूएनडीपी के रिपोर्ट आते हैं, अंकटाड के हो गए, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी, और कोई भी यूएन ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह, जैसे कि जीडीपी रिलेटेड वगैरह डाटा वगैरह आते रहते हैं। और यही सब पूछा जाता है, जो मैंने आपको इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स बताया उसमें यही सब पूछा था कि एफडीआई रिलेटेड पूछ दिया जाता है आपसे, या आपको जीएसटी का डाटा पूछ दिया जाता है, या आपको डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन का डाटा पूछ दिया जाता है, कई बार आपको आईआईपी का डाटा पूछ दिया जाता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो उसका डाटा आपसे पूछ दिया जाता है। या समटाइम्स दे इवन आस्क यू अबाउट या एफडीआई वगैरह आप तो हो गया। उसके अलावा और भी इस तरह से जो रिलेटेड आपको एक्सपोर्ट रिलेटेड डाटा पूछ देते हैं। ओके, व्हाट हैज बीन द एक्सपोर्ट ग्रोथ, क्या मर्केंडाइज और सर्विस एक्सपोर्ट क्या है, उस तरह के डाटा आपसे पूछ दिया था। सो दीज आर द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यू आर आल्सो सपोज टू हैव इन योर माइंड व्हाइल गोइंग फॉर द एग्जाम। ये आपको इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स में पूछे जाते हैं। ओके, एज आई सेड कवर पीआईबी मैगजीन ऑफ लास्ट 6 to 8 मंथ। Now, the ARD current affairs. ARD schemes of last 6 to 8 month, जितने भी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री रिलेटेड हैं उसके जितने भी स्कीम्स हैं, फ्लैगशिप स्कीम्स ऑफ ऑल द ARD रिलेटेड मिनिस्ट्री, वो तो करना ही करना है। उसके अलावा सेंसस, लाइव स्टॉक सेंसस, हैंडलूम सेंसस, एग्रीकल्चर सेंसस, ये सब करना है। इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट करना है। एमएसपी फॉर रबी एंड खरीफ क्रॉप, जो भी सरकार की तरफ जारी होता है वो करना है। प्रोडक्शन ऑफ मेजर फूड क्रॉप्स एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, what has been the area, which state is the major crop growing area wise and production wise, कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए।
ओके, एंड एनी अदर रिलेटेड रिपोर्ट्स कम जिसका आपको इम्पैक्ट ज्यादा है उसको आपको कवर करना पड़ेगा, दैट आर कवर्ड बेसिकली इन आवर कोर्सेज। जो भी मेरा करंट अफेयर्स वाला कोर्स है उसमें सब कुछ कवर होता है, ये सारी चीजें हम लोग कवर करते हैं। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स, वी डू इट फॉर यू। ओके, वो सारा चीज आपको ऑलरेडी कवर होता है। Okay, then comes the decision making. These are the topics that you need to cover for decision making, and these are the topics that you need to cover for computer awareness. Okay, so this was the phase one exam. Now let's talk about the phase two exam. So phase two exam में क्या है कि phase two exam will have two paper only. Paper one, which is descriptive English, you will have to type your answers. You will have to type. Online typing is needed. ये चीज पर मैं क्यों फोकस कर रहा हूं, बिकॉज मेनी ऑफ यू हैव डिफिकल्टी इन ऑनलाइन टाइपिंग। ओके, आप लोगों को ऑनलाइन टाइपिंग में दिक्कत होती है। सम ऑफ यू इवन कुड नॉट नो, डोंट नो, इवन हैवंट डन एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन टाइपिंग, कोई कीबोर्ड वगैरह, दे आर नॉट कीबोर्ड फ्रेंडली, एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल। ओके, तो स्टार्ट लर्निंग द टाइपिंग। अगर आपके पास 40 वर्ड पर मिनट नहीं है तो आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। यू वोंट गेट टाइम टू थिंक अबाउट आंसर्स। आप लिख कुछ भी लिख के आ जाओगे। तो इसीलिए जरूरी है कि आप इस वर्ड को ग्रेजुअली यू स्टार्ट टाइपिंग, एंड ग्रेजुअली यू इंक्रीज योर टाइपिंग स्पीड एंड रीच द वर्ड लिमिट ऑफ एटलीस्ट 35 to 40 वर्ड पर मिनट। ये मस्ट है, दिस इज द मस्ट। अगर आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करने वाले हो 1 महीना बाद, तो अभी कम से कम टाइपिंग पहले सीखो, टाइपिंग प्रैक्टिसेस करो। बाय ए कीबोर्ड, वो भी आप 400 से 500 रुपए का कीबोर्ड खरीद सकते हो, और उस पर आप जो है ये चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, एक्सटर्नल कीबोर्ड से ही करना, सस्ता वाला कीबोर्ड खरीदना फोटोनिक्स इंटेक्स वगैरह का, और उस पर प्रैक्टिस करना, बिकॉज इन द एग्जाम ऑल्सो दे गिव यू सच काइंड ऑफ कीबोर्ड्स ओनली। वो की जिसमें थोड़े स्टक होते हैं, कि उतने अच्छे नहीं होते हैं, और उसी पर आपको प्रैक्टिस करना है इतने वर्ड लिमिट का। ओके, सो इफ दीज आर थिंग्स आर क्लियर, सो नाउ हियर इन द डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, so it is a whole day exam, so they give you two admit cards. They will release two admit cards, one for the paper one. So it would be conducted in the morning shift. It would be conducted in the morning shift. Okay, you report at the 8 a.m. 9 बजे से या 10 बजे आपका पेपर स्टार्ट होगा। आपको शुरू का 90 मिनट जो होता है, इट इज ऑफ 90 मिनट, और ये फर्स्ट पेपर आपका जो है वो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होता है। ओके, आफ्टर दैट यू हैव अ ब्रेक ऑफ 1 hour, you get a break of 1 hour, and later you come back. Okay, and then there is once again there are some security process, biometric वगैरह होगा, and you sit for the paper 2. Okay, and पेपर वन इज कॉमन फॉर ऑल द स्ट्रीम्स, इट इज कॉमन फॉर ऑल द स्ट्रीम्स लाइक जनरलिस्ट, कंप्यूटर, सबके लिए कॉमन है। बट पेपर टू इज नॉट कॉमन, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट। जैसे जनरलिस्ट के लिए अलग पेपर होता है, कंप्यूटर का अलग पेपर होता है, इस तरह से आपका सबका अलग अलग होता है। सो यू कम बैक फॉर पेपर टू, देयर यू हैव 2 hours फॉर फर्स्ट 30 मिनट इज फॉर ऑब्जेक्टिव। ओके, एंड वंस यू कंप्लीट द ऑब्जेक्टिव राइट अवे, जैसे आपका 30 मिनट कंप्लीट होता है, राइट अवे योर डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट्स ऑटोमेटिकली। ओके, एंड दैट इज फॉर 90 मिनट। Okay, in the descriptive, you have 6 questions. There would be section A and section B. Under section A, 15 marks questions would be come. Under section B, 10 marker questions would come. Okay, अब इस देखो सेक्शन ए में क्या है कि there would be the first question जो होगा वो कंपल्सरी होगा। The question 1 would be compulsory. तो उसके लिए क्वेश्चन लिखा होगा और उसमें आपको स्पेस दिया होगा, वहीं पर आपको टाइप करना है। दिया हुआ है, स्पेस दिया हुआ है। क्वेश्चन 2 जो होगा वो क्या होगा, वो ए और बी करके दिया होगा। आइदर यू हैव टू राइट ए और यू हैव टू राइट बी। तो क्वेश्चन बी टू में जो आपको ऑप्शन दिया रहेगा, इसलिए इसको बोलते, कई जगह लिखा होता है कि क्वेश्चन 2 और इसको क्वेश्चन 3 लिख देते हैं, लेकिन एग्जाम में जो पोर्टल होता है वो इस तरह से आपको यहाँ पे लिखा होगा, इस स्पेस में यहीं पर आपको ए एंड बी लिखा होगा। या तो आप इसको सेलेक्ट करो या इस पर लिखो। आप लिखोगे, अगर आप ए चूज करते हो तो यू वुड राइट ए, और फिर उसके नीचे आप आंसर लिखोगे। ओके, अगर आप बी चूज करते हो तो बी, और उसके नीचे आप आंसर लिखोगे। ये चीज ध्यान रखना होता है। ओके, तो ये इस तरह से आपका आता है। सेम चीज आपको 10 मार्कर में भी होगा। सो देर इज वन कंपल्सरी क्वेश्चन एंड यू गेट ऑप्शन इन रिमेनिंग 2 क्वेश्चन ओनली। ओके, बट आरबीआई में क्या होता है कि 3 में से कोई 2 अटेम्प्ट करना होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर 2 में से एक आपको, एक कंपल्सरी है और 2 में से कोई एक अटेम्प्ट करना है, ऐसा केस बनता है यहाँ पे। ओके, अब देखो, अब यहीं पर एक और चीज ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर 50 मार्क्स का, यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर भी ए और बी बना रहता है सेक्शन। सेक्शन ए में आपको 2 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, एंड सेक्शन बी में 1 मार्कर क्वेश्चन होता है। सो 2 मार्कर क्वेश्चन हियर, 20 क्वेश्चन वर्थ 2 मार्क्स, 2 मार्क्स ईच वुड बी देयर, और यहाँ पर 10 क्वेश्चन वर्थ 1 मार्क्स ईच वुड बी देयर। अब देखो, यहाँ पर जो होते हैं ये सेट ऑफ क्वेश्चन बन के आते हैं। लाइक एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, बड़ा सा लेंथी सा पैराग्राफ रहेगा, उस पर आपको 3 क्वेश्चन पूछ देंगे या 4 क्वेश्चन पूछ देंगे। लेट सपोज दे गिव यू दिस पैराग्राफ ऑन मनरेगा।
ओके, मनरेगा पर उन्होंने दिया और मनरेगा पर उस पर उन्होंने 3 से 4 आपको क्वेश्चंस पूछ देने हैं और सब क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से पैराग्राफ पर क्वेश्चन जनरली आपको पूछा जाता है 2 मार्कर में, 1 मार्कर में ये आपको पैराग्राफ पर नहीं देता, वहां पर बीके से जुड़े, लेकिन वो भी लेंथी क्वेश्चन थे। जैसे 2021 में 1 लाइनर था, 22 में थोड़ा सा उन्होंने इंप्रूव किया, 23 में पूरा फाड़ू दिया, 24 में उन्होंने एक और लेवल अप लेकर गए, 1 मार्कर को ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया उन्होंने। सो दिस इज हाउ इट इज। ओके, तो ये आपका मेंस का है। तो जब मेंस क्लियर करते हो तो उसके बाद आपका इंटरव्यू स्टेज आता है। मेंस जो मैंने आपको कट ऑफ वगैरह दिखाया था वो आप क्लियर करोगे, इंटरव्यू स्टेज आएगा। तो बिफोर कंडक्टिंग योर इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यू, उससे पहले आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। इसमें वो बेसिकली आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है। ये इट इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट, इट इज फॉर 90 मिनट्स ड्यूरेशन। ये आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। दे गिव यू, दे रिलीज एडमिट कार्ड, ये आपको देना पड़ता है। सो इट इज एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट साइकोमेट्रिक। इसका मार्क्स कहीं जुड़ता नहीं है, दिस पर्टिकुलर डाटा दे हैव विद देमसेल्फ। जो आपको ये उनके पास होता है, ये साइकोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं जो आपका एनालाइज करता है, आपको प्रोफाइल को, किस तरह के आप पर्सन हो, वो बेसिकली उसको यूज करता है। सो इट इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट आपको चाहिए, मैंडेटरी है, सबको देना पड़ता है और ये आपको कंडक्ट होता है। वन आफ्टर दैट दे शेड्यूल, गिव यू द शेड्यूल फॉर इंटरव्यू। एंड फ्रॉम 2021, जो कि आपका कोविड के 2020 से ही जो है, आपको इंटरव्यू ऑनलाइन हो रहे हैं। ऑनलाइन कहने का मतलब वर्चुअल इंटरव्यू हो रहा है। मीन्स द पैनल, सिंगल पैनल होता है, 3 लोग होते हैं एट द मोमेंट। द पीवी भारती इज द चेयरमैन, सी वाई द सीईओ एंड एमडी ऑफ कॉर्पोरेशन बैंक। कॉर्पोरेशन बैंक की वो थी, लेटर सी रिटायर्ड। ओके, और पी भारती वही अभी करंट में चेयरमैन है, पिछले 2 साल से 2023 और 2024 बैच में सी वाई द चेयरमैन बेसिकली। ओके, एंड देर आर 2 अदर मेंबर। Sayyad sir, he is basically he was the CGM, basically he was the CGM of NABARD, and there is another मैम, मैं उनको उनका नाम बार बार भूल जाता हूँ, कोई मरांडी मैम है, क्या तो नाम है उनका। सी वाज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बेसिकली एक्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। ये जो मैम है और ये जो सर है सैयद सर, ये पिछले 5 साल से ये पैनल में बैठ रहे हैं लगातार, यही है। ये जो चेयरमैन मैम है, इससे पहले आपको चेयरमैन कोई और थी, अभी जो चेयरमैन मैम है वो 2 साल से ही है। अगला साल क्या होगा, नो वन नोज। ओके, तो आपका यहाँ पर इंटरव्यू होता है, तो आप क्या होता है कि यू रिपोर्ट टू योर रीजनल ऑफिस, जो आपका नियर बाय रीजनल ऑफिस होता है। लाइक फॉर इन माय केस इट वाज पटना, इन माय केस इट वाज पटना, इन योर केस इट कुड बी देहरादून, इट कुड बी चंडीगढ़। आप रीजनल ऑफिस में करते हैं, देयर यू हैव अ पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ऑल द प्रोसेस वुड बी डन, सब कुछ आपको किया जाएगा। ओके, एंड देन देर इज ए सेपरेट रूम। ओके, वीसी रूम होगा, वहां पर बड़ा सा आपको स्क्रीन लगा होगा। ओके, उसमें स्पीकर, वो सब कुछ आपको स्पीकर एंड सब कुछ लगा रहता है, कैमरा, बड़ा सा कैमरा लगा रहता है। एंड इन फ्रंट ऑफ दैट यू गेट अ चेयर, उस चेयर पर आपको बैठना होता है। एंड देयर, फ्रॉम देयर यू गेट कनेक्टेड फॉर द इंटरव्यू। तो ये वर्चुअल इंटरव्यू वो लोग ले रहे हैं, पिछले जब से कोरोना आया तब से वो लोग वर्चुअल इंटरव्यू ही कंडक्ट कर रहे हैं। Okay, and for the calling ratio for the mains and interview should be 1:25, although it is 1:20 only. Okay, and 1:3 for interview. तो मेंस से इंटरव्यू के लिए जो सिलेक्शन होता है वो ओनली 3 गुना लोगों को सेलेक्ट करते हैं। ओके, वहां पर 3 गुना लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। और कुछ कंडीशंस हैं, अगर मार्क्स इक्वल हो गए मेंस एग्जाम में तो उसके लिए क्या कंडीशन है, वो सारा कुछ यहाँ पर मेंशन किया हुआ, आप जरूर इसको देख सकते हैं। यू कैन गिव इंटरव्यू इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, द पैनल अंडरस्टैंड हिंदी और इंग्लिश बोथ। So here I have mentioned the syllabus of economics and social issue. The first, okay, देखो ESI static में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, because they do not ask you static questions. Yeah, they have, they may ask you at least one maybe descriptive answer writing question. Okay, ऑब्जेक्टिव में कम ही चांस बनता है, बट इन डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग दे कैन। एंड समटाइम इफ दे आस्क यू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, मे बी इन केस ऑफ कंपल्सरी क्वेश्चन, तो आप फंस जाओगे। ओके, बिकॉज इफ यू हैवंट रीड, so that's why I always suggest there are various themes, like inflation is a major theme. Okay, then globalization is important theme, they have asked question on this। reforms, economic reforms जो हुआ है, opening of Indian economy, ये सब important themes हैं। इस पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर पेपर। poverty alleviation programs by the government, पॉपुलेशन पॉलिसी, दे हैव बीन आस्किंग क्वेश्चन ऑन डेमोग्राफिक डिविडेंड, वो पूछ रहे हैं बार बार डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में। तो ये सब चीजें क्या है, ये बर्निंग टॉपिक्स है, ये थीम है। सो गेट अ लिस्ट ऑफ 20 to 25, उससे ज्यादा होगा भी नहीं, 20-25 टॉपिक्स, मतलब थीम्स रेडी कर लो, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट थीम्स अंडर योर सिलेबस, और उस पर डिस्क्रिप्टिव के फॉर्डर मटेरियल रेडी कर लो। ओके, रेडी द फॉर्डर मटेरियल लाइक इंपॉर्टेंस, चैलेंजेस, डिफरेंट डाटा, फैक्ट्स, एवरीथिंग, वो सब कुछ इस पर प्रिपेयर कर लो। ओके, सो दैट्स ऑल यू नीड टू डू। वंस यू आर डन विद दैट, हो गया आपका काम खत्म। ओके, क्वेश्चंस पूछेंगे आपको, उसी से रिलेटेड कुछ, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा या उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा। यू हैव द कंटेंट, यू जस्ट नीड टू थिंक अ बिट
क्रिटिकली वहां पर आपको थोड़ा सा सोचना है, क्रिएटिविटी दिखानी, और आप आंसर लिख पाओगे। सो रेदर देन डूइंग द होल इकोनॉमिक स्टैटिक, उसका पूरा 300 पेज का बुक पढ़ रहे हैं, दिस इज द बेस्ट वे दैट यू कैन फॉलो। ये चीज आप कर सकते हो, ये आपके लिए काफी हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो हियर वी हैव आई हैव मेंशन द सिलेबस, पॉज करके आप देख सकते हो। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है एजुकेशन। यहाँ से काफी क्वेश्चंस वो बार बार पूछते रहते हैं। ओके, यहाँ पर इलिटरेसी वगैरह के बारे में बात की गई है, तो यहाँ से ऐसे भी पूछते हैं, हर साल एक ऐसे पूछ लेते हैं वो लोग। तो ये चीज ध्यान रखना, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है यहाँ पर जिससे आपको क्वेश्चन, जिससे देखो डेमोग्राफिक ट्रेंड्स पर क्वेश्चन पूछा है। सो पॉपुलेशन पॉलिसी ऑलरेडी दिया हुआ है, और डेमोग्राफिक ट्रेंड भी है। ये चीज ध्यान रखना कि पॉपुलेशन पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट है नबार्ड के लिए, इन्फ्लेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ग्लोबलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजों को समझना जरूरी है, व्हाट इज बेसिकली फूड सिक्योरिटी काफी इंपॉर्टेंट है, पीडीएस काफी इंपॉर्टेंट है, एमएसपी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजों को समझना जरूरी है। या देयर इज अनदर थिंग, डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ में एग्रीकल्चर रिलेटेड भारत का काफी ज्यादा चलते रहता है उन लोगों का टसल। तो डब्ल्यूटीओ का क्या इंपैक्ट होता है, डब्ल्यूटीओ के जो सब्सिडीज वाले इंपैक्ट होते हैं उसका क्या इंपैक्ट होता है, इस पर क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं। सो यू विल हैव टू एनालाइज द प्रीवियस क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट कुड बी आस्क्ड, एंड यू विल हैव टू प्रिपेयर सर्टेन थीम्स, और उसी थीम पर आपको जो पूरा तैयारी करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स स्टैटिक, सॉरी ये था इकोनॉमिक्स, एआरडी का। लेट्स टॉक अबाउट द एआरडी। अब देखो, कई सारे होशियार आपको मिलेंगे यूट्यूब वगैरह पे, टेलीग्राम वगैरह पर, दे विल से देयर आर सम सेलेक्टेड चैप्टर्स। Yes, there are some, but NABARD has been asking a varied range of questions in agriculture statistics, especially in case of prelims, sometimes in mains exam also. So don't be selective over here. मेरा एक ही सजेशन होगा, don't be selective over here. बुरा फंसोगे, अंतिम में जाके सिलेक्शन नहीं होगा। मैं खुद इस चीज के पश्चाताप में हूं कि मैं कई बार इस मैंने गलती की हुई है। सो आई डोंट वांट यू टू मेक से मिस्टेक। डोंट बी सेलेक्टिव ओवर हियर। यहाँ पर सेलेक्टिव हो जाओगे, यहाँ पर आपको डिटेल में हर चैप्टर को वट एवर दे हैव मेंशन, यू नीड टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग। ओके, वो बार बार पूछ रहे। यस, देयर आर सम टॉपिक्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, लाइक एग्रो फॉरेस्ट्री विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक देर इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रिसीजन फार्मिंग। लाइक दिस ईयर दे आस्क्ड अबाउट ड्राईलैंड फार्मिंग, उन्होंने 15 मार्क्स का यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पूछा ड्राईलैंड फार्मिंग पर। ओके, एग्रोनॉमी अनदर। सो ये सब कुछ है इंपॉर्टेंट, मेट्रोलॉजिकल जो भी वेदर पैरामीटर्स होते हैं। सिमिलरली सॉइल साइंस में आपको सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल कंजर्वेशन वगैरह के बारे में पूछ सकते हैं। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इरिगेशन, तो वो सब आपसे पूछ सकते हैं। राइट, माइक्रो इरिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंडर द फार्म मैकेनाइजेशन हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो उससे आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एग्रो प्रोसेसिंग काफी इंपॉर्टेंट है। अभी इस साल रिसेंटली उन्होंने स्टोरेज पर क्वेश्चन पूछा था, स्टोरेज फैसिलिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा था। ओके, तो मॉडिफाइड स्टोरेज वगैरह है। सो देन देर इज एग्रीकल्चर, उन्होंने इस बार एग्रीकल्चर पर एग्रीकल्चर सप्लाई, सॉरी हॉर्टिकल्चर सप्लाई चेन पर क्वेश्चन पूछा उन्होंने। आप सोच नहीं सकते कि उन्होंने हर चीज पर, उन्होंने जो भी चीज आपको उन्होंने सिलेबस में मेंशन किया है, यही पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एज इट इज क्वेश्चन में था। एज इट इज 15 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, जो लिखा हुआ है सिलेबस में सेम टू सेम चिपका दिया उन्होंने, 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। तो ये चीज है कि आपको जो भी लिखा हुआ है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, वैल्यू सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, वो चीज दिया था उसको उन्होंने पूछ दिया। तो ये आपको समझना जरूरी है कि वट एवर दे हैव मेंशन इन द सिलेबस, यू नीड टू हैव अ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस आल्सो। ओके, देन देर इज एनिमल हस्बेंड्री, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से क्रॉस ब्रीडिंग का क्वेश्चन पूछा था, और हर साल यहाँ से ऑब्जेक्टिव के काफी क्वेश्चंस, खास करके ब्रीड्स वाले, जो आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स होते हैं, एनिमल ब्रीड्स होते हैं, बफेलो के, कॉ के, पोल्ट्री के, ये सब पर काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है। तो इसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा। एनिमल हस्बेंड्री इज इंपॉर्टेंट। देन देर इज फिशरीज, ब्लू इकोनॉमी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा, पीएमएमएस हुआ है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। उन्होंने 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था इस पर डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए। नबार्ड में स्कीम्स आल्सो कम इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव, हर साल एक स्कीम जरूर आता है। जो इस साल उन्होंने दे आस्क्ड फॉर 10 मार्क्स, अ क्वेश्चन वाज ऑन 10 मार्कर, एंड द क्वेश्चन वाज ऑन पीएम विश्वकर्मा स्कीम एंड स्वामित्व स्कीम। सेम क्वेश्चन में आपको यह था, स्वामित्व एंड बीएम विश्वकर्मा के बारे में लिखना था। लास्ट ईयर दे आस्क्ड सम अदर स्कीम, उससे पहले उन्होंने जो है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एनआरएलएम के बारे में पूछ दिया था। इन द सेम ईयर 2022 उन्होंने जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में पूछा था। सो एवरी ईयर दे आस्क यू एटलीस्ट 10 मार्कर और 15 मार्कर क्वेश्चन ऑन स्कीम्स। तो डिस्क्रिप्टिव में भी स्कीम्स पूछते हैं वो लोग।
ऑब्जेक्टिव तो पूछते ही पूछते हैं। ये पूरा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, लास्ट ईयर अ 15 मार्कर क्वेश्चन वाज ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। देयर दे आस्क्ड अबाउट द वेरियस मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इंपॉर्टेंस ऑफ दोज मेथड्स, ये सब चीज उन्होंने पूछा था। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रोल, इंपॉर्टेंस और एक्सटेंशन के मेथड्स वगैरह दिए हुए हैं, तो वो चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक और चीज आपको देखना पड़ेगा, एग्रीकल्चर फंड, इस बार उन्होंने एग्रीकल्चर मार्केटिंग पर क्वेश्चन पूछा। दे आस्क्ड ए क्वेश्चन ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, मेंशन द 5 प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर, 5 प्रॉब्लम्स फेस्ड इन द एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया, कि 5 कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको समझने की बात है कि इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट पर वो हर साल क्वेश्चन पूछते, दे आस्क यू। ओके, दैट पर्टिकुलर टॉपिक आई गेस इज इन ESI। ओके, दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज इन ESI आई गेस। सो दीज आर द बेसिकली थिंग्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन। तो ये आपका जो मैंने बुक्स पर वीडियो, अगर आप यू आर नॉट बाइंग एनी कोर्सेज तो यू कैन डायरेक्टली फॉलो दीज बुक्स, ये आपका सफिशियंट रहेगा। उसके अलावा मैंने कुछ टिप्स दिया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये आइडियल प्लान, 6 मंथ का ये आइडियल प्लान है विच यू कैन फॉलो। ओके, विच यू कैन फॉलो। सो इस पर पूरा मैंने हर चीज को डिस्कस किया हुआ है। सिमिलरली यू कैन बाय माई कोर्स, मेंटरशिप प्रोग्राम आप यहाँ पर कर सकते हो, उसमें लिंक दिया हुआ है, सारा फीचर्स आपको मेंशनड है। इट विल कॉस्ट यू अराउंड 2500, या अगर आप डिस्क्रिप्टिव लेना चाहते हो तो दैट विल कॉस्ट यू 1799। ओके, एंड अदर चीज दिया हुआ है। सो दैट्स ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, so see you in the next lecture where I would be discussing some important topics. Thank you very much for joining.